Welcome all to this little Republic Day function that we are organizing today. And we are very happy to have with us Major General Shyam Shrivastava Saheb here. So if we can have him on the screen, it will be great, Rohan. Namaste, Shyam Saheb. Namaste. Sir. Thank you for taking your time out and being with us to celebrate this Republic Day function with us. No, it's a real big honor for us, sir, that you are here. Thank you very much. Actually, it's a great pleasure to interact with you people who are away. Actually, many people here, they want to hear you, and we will give them good time to ask question with you and to hear you. But I think just let me go with an official formal welcome speech. Then we will be all together. I'm just waiting for a few. Good evening, everyone. I officially now invite everyone for this small event for Republic Day. I, Dr. Arshi Malik, President of Indian Overseas Congress, Saudi Arabia, thank and welcome each and every one of you for being here with us. Today, India celebrates its 73rd Republic Day. On behalf of our IOC team, I welcome our honorable chief guest, Major General Shyam Shrivastava Saheb, for taking his precious time out and to be among us. Thank you, Shrivastava Saheb. Thank you very much to be with us. Thank you, sir. This day reminds us of our freedom struggle and how we received Purna Swaraj, or the complete independence. So, without further ado, I would like Javed Miadad ji, to say a few words in honor of Major Sahab. Over to you, Javed ji. Thank you. Good evening, you all. First of all, I would like to thank you for our beloved President, Dr. Arshi Malik, President of IOC Saudi Arabia, arranging for this great event. It's our privilege and honor. We have a great personality between us. I wholeheartedly introduce our chief guest, Major General Shyam Shrivastava. Everyone, please give a massive round of applause, Major General Shyam Shrivastava. Major General Shrivastava joined the Indian Army in 1978. He taught the commissioning training for technical graduates and won technical silver medal during passing out. He did his super specialization of non-com electronic warfare from Sunnyvale, California, USA. He held many commands, staff, and instruction appointed during his service. He commanded his battalion Nagaland during insurgency. He worked for Integrated Guided Missile Development Program at DRL, Hyderabad. Under Dr. Abdul Kalam, for Prithvi and Agni missile, he provided completely technical support to Northern Command of Army of MGME, completely Jammu and Kashmir, and including Ladakh and Siachen and part of Himachal and Punjab. He worked as a director for Rolta India Limited, Mumbai for 2 years. He was active in sports, student council and debating team during his college year at Manit. He was the general secretary of the college of 1974 and 75. He captained college hockey team, and he was a regular member of college Indie debating team. He was a keen sportsman and avid golfer. Since 2017, he is a secretary of Nitya Seva Society, Bhopal, an orphanage of 200 plus children. He is All India President and founder of Ordi Social Welfare Foundation, an organization of retired uniformed personnel. He is a member of board and governor of Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal. He is also director of Nisham the General's Academy. He is also heading Celebrity King Private Limited, Bhopal. So I request Major General Shyam Shrivastava, please come forward addressing the gathering. Thank you. Thank you very much, Javed. And good evening, Namaste and Jai Hind. You see, today is the Ganatantra Divas. If you don't mind, I would like to speak in Hindi.
Sure, sir. because So I think most of the people can get those things which I want to convey. आज गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सारे देशवासियों को, सब लोगों को, हम सब जानते हैं कि हम गणतंत्र क्यों बनाते हैं। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और व्हाट ए ग्रेट संविधान। अगर आप देखें तो एक ऐसा संविधान जो शायद विश्व में अपने टाइप का अनोखा होगा, क्योंकि हमारा देश अनोखा है। हमारे देश में हम जानते हैं अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रांत, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा, पता नहीं कितनी सारी चीजों को मिला करके ये देश बना है और बढ़ा है। हम लोगों को जब आज़ादी मिली थी उससे पहले हमारी समस्याएं दूसरी थी। हम उन सबको नमन करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी ला करके दी, लेकिन हम उन्हें भी नमन करते हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से आज तक हमारे देश को उस जगह पे जाकर खड़ा कर दिया है जहाँ हम विश्व के किसी भी देश से कम नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, उसे भी हम पूरा कर लेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे लोग, जिनके अंदर जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत सिंसियर हैं, बहुत देशभक्त हैं और कुछ भी करने का मादा रखते हैं। आज मैं आपको 3 पर्सनैलिटीज के बारे में कुछ बताऊंगा जिनके सामने मैंने काम किया है। एक हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम, हमारे डॉक्टर कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम। दूसरे हमारे कैप्टन विक्रम, एंड थर्ड इज वन IPS ऑफिसर मिसेस आशा गोपाल। कलाम साहब जो थे वो एक अलग ही पर्सनालिटी थी। 1984 में जब हमारे रक्षा मंत्री उस समय वेंकट रमन जी थे, जो बाद में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने, वो इंदिरा गांधी जी के सामने कलाम साहब को लेकर के गए विद प्रोग्राम। कलाम साहब उस समय अपने इसरो में काम करते थे और उन्होंने अपने मिल करके देश के लिए एक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में सोचा था। और उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया उसके अंदर उन्होंने 5 मिसाइल के बारे में बताया। वो एक पृथ्वी थी, एक अग्नि थी, एक आकाश थी, एक त्रिशूल थी और एक नाग थी। पृथ्वी जो थी वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, कम रेंज की थी। अग्नि जो थी वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, बहुत ज्यादा रेंज की थी। आकाश जो है सरफेस टू एयर मिसाइल थी, ज्यादा रेंज की थी। त्रिशूल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल, कम रेंज की थी। और नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल थी। उस समय तक हमारे पास मिसाइल की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और उस समय डॉक्टर आजाद साहब, डॉक्टर कलाम साहब ने सोचा कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। DRDL हमारे साथ उस समय ऐसा था, इसने कोई भी कुछ भी तब तक कुछ करके दिखाया नहीं था। और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने जैसे ही देखा उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया और कलाम साहब जो है वो DRDL हैदराबाद के डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर बनने के बाद में जो मतलब उस समय तक आप एक मिसाइल की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो, सारे काम कर सके, उसके छोटे से छोटे चीज के बारे में भी लोगों को पता नहीं था। उन्होंने पहले गए 5 मिसाइल के लिए, बहुत ही डायनामिक उन साइंटिस्ट में से 5 साइंटिस्ट चुने। उन्होंने उनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया, सारे साइंटिस्ट को इकट्ठा किया। उन्होंने बोला देखो आप सारे बहुत लकी हो कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है और मुझे अभी से पूरा विश्वास है कि हम ये प्रोग्राम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उनको मुझे मालूम है। बोले सर क्या होता है, हमारे लेबोरेटरीज में ही वही सब अफसरशाही चलती रहती थी। अगर आज आपको कोई चीज खरीदना है उसके लिए महीनों लगेंगे, सैंक्शन होगा, पता नहीं कैसे काम होगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ नहीं होता। पहले ही दिन उन्होंने बोला कि जो भी साइंटिस्ट है वो अगर कुछ भी खरीदना चाहता है, वेदर इट इज इक्विपमेंट, वेदर इट इज टेस्ट इक्विपमेंट, वेदर इट इज मटेरियल, वेदर इट एनीथिंग, आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से साइन कराइए। डोंट वरी कि वो कितने की आ रही है, कहाँ से आ रही है, कोई 3 कोटेशन नहीं है। वी हैव फुल फेथ ऑन यू। आप लोग काम कर रहे हैं, ईमानदार हैं, इतना पढ़ लिख कर के आए हैं, इतनी देर के बाद आपका सिलेक्शन हुआ है, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दैट। सो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि बीच में जितने भी हर्डल्स थे उन सबको उन्होंने वहां से हटा दी। किसी को कहीं भी मूव करना हो, कहीं भी जाना हो, कंट्री के अंदर किसी को कोई इश्यू ही नहीं। अगर बाहर जाना हो तो उसके लिए भी उसको मदद की जाएगी। उसके बाद उन्होंने वहां पर एक रिसर्च सेंटर इमारत करके एक जगह है, उस जगह पे उन्होंने दुनिया भर की सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कर दी। बिकॉज जब भी कभी मिसाइल्स के अंदर एक ये प्रोग्राम बात होती है, मिसाइल और एयरक्राफ्ट के अंदर, कि अगर एक बार ये शुरू हो गया तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इट इज नॉट लाइक व्हीकल की एक जगह खड़ी हुई आपने
किसी को भेजा और उसको ठीक कर दिया, ऊपर गई तो फिर वो गई। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा QA सिस्टम चाहिए। सो उन्होंने एक QA सिस्टम बनाया जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एक CRI होती है, उसके QA सिस्टम को मिलाकर एक QA सिस्टम बनाया। उसको उन्होंने MSQA नाम दिया, मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी। और वो जो एजेंसी थी वो जो है मतलब इन सब के साइंटिस्ट के साथ थी, बट उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में रखा गया। इसलिए रखा गया कि वो किसी भी प्रेशर के अंदर नहीं आए, उनको जो भी कुछ वो कहेंगे वो लास्ट वर्ड होगा। वहां से उसको शुरू किया गया और आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे पहले हमने पृथ्वी बनाई, 150 किलोमीटर की पृथ्वी बनाई, उसका 250 किलोमीटर की पृथ्वी बनाई। और पृथ्वी बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप लिया गया वो ये था कि इसे कैसे इंडिजिनाइज किया जाए। फर्स्ट टाइम जब हमने पृथ्वी बनाई थी उस समय उसमें करीब 85% कंपोनेंट्स बाहर के लगते थे, इंपोर्टेड होते थे। एंड उसके बाद वो भी एक बहुत अच्छा तरीके से उसको किया गया। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सिस्टम जहाँ जहाँ डेवलप थे, कोई पुणे में है, कोई बॉम्बे में है, कोई गुजरात में है, कोई कहीं पर है, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदर इट इज हाइड्रोलिक्स, वेदर इट इज मैकेनिकल, उन सब लोगों को बुलाया गया और जो कुछ भी कंपोनेंट हमारे पास थे वो उन्हें दिए गए कि भाई ये कंपोनेंट है, ये इसका स्पेसिफिकेशन है, अगर आप इस स्पेसिफिकेशन का इसको बना सकते हैं तो 50 मिसाइल का आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा। ऐसा करके बहुत लोगों ने उसके ऊपर काम किया। एंड यू विल बी सरप्राइज कि एज एंड टुडे पृथ्वी मिसाइल जो है वो अबाउट मोर देन 90% कंपोनेंट इंक्लूडिंग द सॉफ्टवेयर इज फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम आवर लेबोरेटरीज एंड ऑल। तो वहां से उन्होंने शुरू किया। बहुत सारी कहानियां हैं कलाम साहब की। एक और बात क्या हुआ कि जब भी कभी ये मिसाइल्स वगैरह बनाए जाते थे तो इनको फायरिंग के लिए हम सी शोर के पास ले जाते थे और वो वहां से हम इसको फायर करते थे, मिसाइल का पूरा पाथ ट्रेस करते थे। सारे साइंटिस्ट वगैरह जो हैं उनके पास में टेलीमेट्री होती थी, उसके द्वारा हम उनको बताते थे कि भाई मिसाइल जो है वो कितने किलोमीटर चली गई, मिसाइल जो है समुद्र में जाके गिर जाती थी। बट आर्मी जो अटैच थी उस समय वहां पर, उनके सीईओ को एक डाउट ये था कि ये सब सारे इंजीनियर्स हैं, अभी हमको बोल रहे हैं कि मिसाइल आपकी जो इतने किलोमीटर जाएगी इतने एक्यूरेसी के साथ उधर चली जाएगी, बट हाउ कैन वी बिलीव? आप कुछ भी करके कर सकते हैं, बाद में बोल देंगे गलती हो गई, लेकिन जब लड़ाई के अंदर हम लोग जाएंगे और उसको फायर करेंगे तो पता नहीं कहाँ जाकर गिरती है। I hope the time is not the limit. I can take about 20-30 minutes. No sir, you can continue. बहुत अच्छा लग रहा है सर. We are listening to you sir. कोई time limit नहीं सर. Go ahead sir. Okay, thank you. Thank you. So उन्होंने बोला कि भाई ये तो साइंटिस्ट जो थे वो बिल्कुल डिफेंसिव हो गए, इसे नथिंग डूइंग, हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, इसके अंदर देख लीजिए हम कैसे कर रहे हैं। बट कलाम साहब के पास जब ये बात पहुंची तो बोले नो, वी हैव टू टेक आर्मी इन कॉन्फिडेंस। वो वहां से उन्होंने चापर लिया और उधर जहाँ से ITR बालासुर से हम उसको फायर करते थे मिसाइल को, वहां से आसपास के अंदर उन्होंने अपने सारे टापू या जिसको बोलते हैं उनको देखना शुरू किया। एंड एक आइलैंड उनको मिला जो अबाउट 3 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर था। और वो वहां से मतलब सी शोर से जहाँ से हम लोग थे वहां से करीब 25 किलोमीटर था, बट जहाँ से हम फायर करते थे वहां से करीब 80 किलोमीटर था। और मिसाइल की जो रेंज थी वो 70 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर उस समय होती थी। वहां से जाके वो मिसाइल फायर की गई। वो मिसाइल जो उसमें जाकर उस टापू पे गिरी, आइलैंड पे गिरी, और उस आइलैंड के ऊपर उन्होंने देखा कि जस्ट 15 मीटर जो था उसका CEP था, यानी एक्यूरेसी वाज जस्ट 15 मीटर। बट उसके बाद में उन्होंने देखा कि ये जो आइलैंड है ये बहुत अच्छा आइलैंड है, और हम जो अग्नि के लिए जब हम अग्नि लॉन्च करते थे तो अग्नि बहुत बड़ी मिसाइल, इसकी रेंज 2000 से उस समय शुरू होती थी और आज करीब 6000 किलोमीटर हमारी रेंज है। तो उन्होंने बोला अग्नि के लिए जब हम करते थे, उसको तैयार करते थे, तो आसपास के कम से कम 25-30 गांव जो है, विलेजेस जो है, उनको खाली करा लिया जाता था। और मिसाइल में क्या होता है कि लास्ट मोमेंट तक कई बार डिले होता है, बिकॉज देयर सो मेनी कंपोनेंट, देयर सो मेनी सिस्टम, सब सिस्टम, अगर एक में भी कोई इशू आ गया तो आप मिसाइल को लॉन्च नहीं कर सकते। और कई कई महीनों तक गाँव वाले वहां से बाहर रहते थे, उनको कंपनसेशन देते थे, बहुत सारा पैसा भी लगता था। तो उन्होंने जो है अग्नि का लॉन्च पैड उस आइलैंड में बना दिया, और जिसको व्हीलर्स आइलैंड कहते हैं। और व्हीलर्स आइलैंड अगर आप आज जाकर के देखें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न लॉन्च पैड, जहां से हम अग्नि मिसाइल को, जो ट्रायल की अग्नि मिसाइल होती थी, उनको फायर करते थे। और एज ऑन टुडे अग्नि वी हैव रीच्ड अबाउट 6000 किलोमीटर अग्नि मिसाइल टोटल सक्सेसफुली। सो पृथ्वी इज टोटली इन द आर्म फोर्सेज, अग्नि इज टोटली इन द आर्म फोर्सेज। आकाश जो कि लॉन्ग रेंज ground to air missile थी, that has also reached, they come into the armed forces.
त्रिशूल के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही थी, अभी भी चल रही है, एंड नाग इज वेरी रिसेंटली इज गोइंग टू बी adopted by the Indian Army. So कलाम साहब का था कि he was a very big scientist, he was a very big scientific administrator, and he was very much approachable. I remember when my 3 years of DRDL, when I was looking after the QA, head QA for first initially for Prithvi and then for Agni, every Friday he was that time SA2RM, scientific advisor to Raksha Mantri. But every Friday evening he used to be in Hyderabad, and every morning, next morning he will go, and whole nights the presentations will continue. He is never tired. Every time he is alert. He was a great man, and on this Republic Day, let's salute Dr. Kalam, who has really done a great thing for the country. Second, I will come to Vikram Batra, Captain Vikram Batra. You see, ये जज्बा होता है, जैसे कलाम साहब का था, ये देश के लिए प्रेम करना या देश के लिए अपने आप को निछावर करना या देश के बनकर रहना, ये अंदर से आता है और बहुत जरूरी है। जिस देश के पास में देशभक्त होंगे, देश वाले होंगे, उस देश को कोई नहीं रोक सकता। सो दैट वाज वन एग्जांपल। अब आते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर। ए यंग ऑफिसर ऑफ 22 years, वेरी गुड, ही वाज पोस्टेड टू द्रास सेक्टर, और वहां पर 22 साल के उस कैप्टन ने, उस ऑफिसर ने माउंटेनिंग वारफेयर पे ही बिकेम द अथॉरिटी। वैसे ही मतलब यंग था, दूसरी सारी चीजों के अंदर किसी भी उसके ऊपर कोई भी अटैक करना हो, कहीं कुछ भी करना हो, ही न्यू कहाँ से गोली आने वाली है, कहाँ पर बचना है, कहाँ पर अपने साथी को ले जाना है। जब आप लोगों को मालूम होगा कारगिल के अंदर क्या हुआ था, जब हम लोग मतलब जनरली हमारा उनसे ये कॉन्टेक्ट था कि जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगती थी तो हम लोग वहां नीचे आ जाते थे और उसके बाद मार्च में जाकर दोबारा अपनी अपनी पोजीशन ले लेते थे। दिस वाज डन इन दिस थिंग, एंड शिमला समझौते के अंदर भी इसके बारे में हमने मेंशन किया हुआ था। बट एक पर्टिकुलर टाइम पर उन्होंने जो है ये सोचा कि इस बार उनके पहुंचने से पहले हम पहुंच जाते हैं, और वो सारी हिल्स थी जिसके ऊपर उन्होंने जाकर के और कंट्रोल में ले लिया, और जब हमारे लोग जाने शुरू किए तो उन्होंने उनको मतलब वो कर दिया। दैट वाज वेरी स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज कश्मीर और लेह को जोड़ने वाली जो रोड है वो पूरी की पूरी वहां से मॉनिटर की जा सकती थी, डोमिनेट की जा सकती थी। सो उसके बाद में इट वाज अ वेरी बिग फाइट, वेरी बिग वार। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू गो फ्रॉम डाउन टू द टॉप, and with all difficulties and all, you have to get it back. It was very difficult task, which our country, which our armed forces has done it, say within little time, and this is because of the people like Vikram Batra. विक्रम बत्रा 3 आप देखेंगे तो बहुत पीक्स होती थी उसकी। पहले टोलोलिंग था, टोलोलिंग के अंदर ही वाज कमीशन इनटू द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, एंड पहले फर्स्ट टाइम के ऊपर उसके अंदर his contribution was there, though a battalion attack was there and he was just having a company, but his company played an important role. And after that point 4250 के अंदर जो एक और दूसरी हाइट थी उसमें भी उसकी कंपनी को इन्वॉल्व किया गया था, और उसके अंदर भी they have done very very well. उसके बाद में वो बहुत फेमस हो गया था because he was good in the mountaineering warfare. He knew अगर कहीं पर जाना है तो कैसे बचा जा सकता है, कैसे उन पहाड़ियों के ऊपर जाया जा सकता है, कैसे उधर जाके अटैक किया जा सकता है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स ही हैज बीन गिवन। उसके बाद में जो एक नेक्स्ट वाला जो उसके ऊपर गया था, इस कंपनी वाज डिप्लॉयड, एंड व्हेन ही वाज गोइंग इनटू दिस 5140 वाली जो पीक हाइट थी, पीक के ऊपर वो जब जा रहा था तो ही हैड नंबर ऑफ फाइट्स देयर। पहले मतलब ही वाज गोइंग, एक उसका सूबेदार था, एक बड़ी करके होता है जैसे आर्म फोर्सेस के अंदर जब भी कभी लड़ाई के ऊपर जाया जाता है तो 2 लोग साथ होते हैं, उसके अंदर एक जवान भी हो सकता है, एक अफसर हो सकता है, एक जेसी हो सकता है, एक अफसर हो सकता है, और जब भी वो लोग वहां पर जाते हैं तो साथ साथ जाते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। मतलब ये दोनों इतने बड़ी हो जाते हैं कि जब भी कभी किसी और को मतलब अपने बड़ी को के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ भी यही हुआ, पहले दे वर गोइंग फॉर ए अटैक फॉर ए पर्टिकुलर पीक के ऊपर अटैक करना था, वहां पर देयर वाज ए वन मशीन एमएमजी जो मतलब काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। उधर 5 आदमी थे, इधर से मतलब वी वर थिंकिंग वी विल गो फ्रॉम लेफ्ट राइट, दिस विक्रम बत्रा took his JCO and few people and went for the attack from the front, and फ्रंट के अंदर ऑफ कोर्स सपोर्ट मिलता है आपको, आरटी का उस समय फायर होता है, सपोर्ट मिलता है, एयरफोर्स एयरक्राफ्ट आपके पास आते हैं जो उनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। बट सामने से कोई आ रहा है, चढ़ाई करके आ रहा है,
पूरे ताकत से आ रहा है, जो कि जिसके ऊपर कि आप मतलब एकदम से एम लेके गोली मार सकते हैं। दे वर लकी, दे रीच देयर एंड दे किल्ड 4 पीपल एंड उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। दिस वाज वन टाइम। उसके बाद नेक्स्ट हाइट पीक के ऊपर जाना था, उस समय भी यही सब कुछ हुआ था। और एक जो है वो LMG पोस्ट थी, इस पे भी इन्होंने मतलब करीब 5 एनिमीज दे हैव किल्ड। बट व्हाट हैपेंड, हिज बडी, जो सूबेदार रघुवीर सिंह था, रघुवीर सिंह जो था, he was shot down and he has to come down and then he saw that वो सब ले जाने के बाद में भी he went for his buddy and when he was going for his buddy he got the sniper shots। पहला मतलब इधर इस पे लगा, कंधे पे लगा, and दूसरा was on his head, and just when saving them, though he has got everything, and after that all people in his company who were going there, they captured that particular thing, and we saw that 3 major heights he had become the contribution, and when he died because for saving his own colleague. So this was again a great chef, and we must salute Vikram Batra, who has been later posthumously got the Paramveer Chak. So salute to Vikram Batra and people like him who are young, who are doing for this thing। वो जो जज्बे के साथ में, इन सब लोगों की वजह से आज हम लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं और आगे बढ़ करके कुछ भी करने की हिम्मत है। दूसरा जो मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ वो है मिसेस आशा गोपाल का। आशा गोपाल इज एन IAS ऑफिसर एंड MP कैडर में थी वो। MP में उन्होंने, उनका बहुत नाम हुआ था, वेरी डियरिंग। अदरवाइज आप उनके 2 डिफरेंट वो थे, अगर जब वो आप उनसे बात करो तो शी वाज वेरी सिंपल, वेरी नाइस, वेरी गुड, एंड व्हेन शी इज प्रोफेशनल शी इज जस्ट लाइक ए प्रोफेशनल, शी विल डू एवरीथिंग। मतलब शी किल्ड 2 डेकॉइट्स एंड उसके बाद में जब भी जहां जहां भी वो पोस्टेड रही, सागर में, ग्वालियर में, कई अलग जगहों के ऊपर, शी नेवर compromised, शी वाज a different kind of a police officer। When she became the SP Bhopal, when she was SP Bhopal, she got caught of few people जो उनको किसी उसके अंदर किया था। Then she got a pressure directly from the chief minister that time, that इन लोगों को छोड़ दो, and she said नहीं, मतलब मैंने एक बार ये कर लिया है तो मैं अभी इनको छोड़ नहीं सकती। So she said देखो तुम मतलब बहुत गलत काम कर रही हो, तुम जानती नहीं हो कितना पॉलिटिकल प्रेशर है, नहीं तो अदरवाइज ऐसा नहीं हो कि इस ये जो है ऐसे लोगों के साथ में कि कहीं आप ही नौकरी से नहीं निकल जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं। Then after few days she was taken from SP Bhopal to housing society, means an attachment she has gone। When she has gone to the housing society of MP Police Housing Society, उन्होंने वहां जाके पूरे MP को विजिट किया, जवानों के, सबके, सिपाहियों के घर देखे, सारा कुछ किया। देन पूरा प्लान बनाया, वर्ल्ड बैंक से अप्रूव कराया, एंड वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड द कंप्लीट हाउसिंग फॉर दिस सिपाहीज एंड ऑल। एंड जब वो बहुत ऐसा बन गया, there are so many people who wanted to go there। Then she was sent to the Ra, and Ra के अंदर when he went to Germany, she got married there। But उसके बाद भी मतलब कभी उन्होंने कोई compromise नहीं किया। एक बार ऐसा भी हुआ कि जब वो डेकॉइट के साथ काम कर रही थी एंड उनके मुखबिर से खबर मिली कि एक बड़ा डेकॉइट जो है वो भिंड के अंदर है। when she was going, so she saw कि उस अंधेरे के अंदर उसके ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, तो उसने बोला तुम हॉर्न कैसे बजा रहे हो? बोला नहीं, मेरे गलती से लग गई। जैसे थोड़ा आगे बढ़े उसने फिर हॉर्न बजाया। He just stopped her, slapped her, बोला अपने सिपाहियों को उसको पीछे रखो, और वहां वापस जाकर के पता चला कि उस बंदे ने उन डेकॉइट से 5,000 रुपए लिए हुए थे, एंड उसने बोला था कि जैसे ही वहां पहुंचेंगे तुम हॉर्न बजा देना, देन वी विल सी इनटू दिस थिंग। सो शी वाज वेरी इंटेलिजेंट आल्सो। बट उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये है कि रिटायर होने के बाद में शी एंड हर हस्बैंड दे हैव ओपन्ड ए नित्य सेवा सोसाइटी। इफ यू फाइंड सम टाइम, यू जस्ट गो टू द दिस थिंग online and see Nityya Seva Society। It is an orphanage for about 200 children, boys and girls। मतलब either they are orphan or they are very very poor, and उनको लिए बहुत अच्छा शेल्टर बनाया जहाँ पर वो रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं। वहीं मतलब पढ़ाई के लिए सारे स्कूल्स में जाते हैं, डिनर, डाइनिंग, एवरीथिंग इज देयर, वेरी स्टैंडर्ड थिंग। एंड उसको हर बच्चे को मतलब कम से कम ग्रेजुएट कराना है अगर वो टाइम पर आ गया तो। अदरवाइज इफ ही इज नॉट गुड इन स्टडी और ही इज ओवर एज, तो उसको 12th करा के, स्किल करा के नौकरी लगाना है। और अभी तक जितने भी बच्चे हैं उन सबको 18 साल 20 साल के बाद में नौकरी पर लगाया हुआ है। आई हैव अ मार्ट, उसमें मेरे पास 3 गर्ल्स जो हैं, ग्रेजुएट गर्ल्स, दे आर फ्रॉम द नित्य सेवा सोसाइटी। सो देयर आर पीपल हु आर रियली गुड एंड वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री। और हम सब ने, देखिए, हमें भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने, सब ने बहुत कुछ दिया है। आज हम उस जगह के ऊपर पहुंच गए। अपनी, मैं तो पर्टिकुलरली
आई एम 66, काफी मतलब वो कुछ कर लिया है, सब कुछ दे दिया, अभी टाइम है व्हेन वी कैन रिटर्न समथिंग टू द सोसाइटी। एंड इसी के लिए हमने ये एक जो हमने निसेवर सोसाइटी में आई एम लुकिंग आफ्टर सेक्रेटरी, उसके बाद में एक हमने वो बनाई है, एनजीओ बनाया है जिसका नाम है वर्दी फाउंडेशन, वर्दी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। होता क्या है, आर्मी के जितने भी हमारे जवान होते हैं वो बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं, अबाउट मतलब उनकी एज 35 से लेके 44 तक तो सारे जेसीओ भी आ जाते हैं। दैट इज द एज व्हेन दे आर नॉट सेटल्ड, द चिल्ड्रन आर यंग, एंड जब 19 साल की नौकरी करके या 23 साल की नौकरी करके जब वो वापस आते हैं तो वो इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं होता है कि जो उनको एक्सेप्ट कर ले, और वो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो उनके उस पैसे से जो थोड़ा बहुत वो लेकर के आते हैं, दे प्ले विद दैट, टेक दैट मनी, एंड दे आर दोज पीपल हु आर देयर इन सियाचिन, हु आर इन देयर इन राजस्थान, हु आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर, वो पूरा अपनी लाइफ देने के बाद में जब वापस आते हैं तो दे कम इन टू द लॉट ऑफ ट्रबल, monetarily also, otherwise also. So our society tries to look after them, and look after them करने के बाद में जब वो किसी लायक हो जाते हैं तो हम उनको सोशल काम में लगाते हैं, because they are the trained people, they are physically very fit, they are honest, they are sincere. अगर उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया जाए तो they can do contribute a lot as well as the country is concerned. तो ये हमारी सोसाइटी वो करती है। अब जहाँ तक इसका सवाल है हमारे देश का, आप लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट देयर आल्सो वी आर सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक डे। ये बहुत बड़ी बात है, ये शो करता है हमारे जज्बे को, ये शो करता है हमारे प्यार को जो हमारे को अपने देश के साथ में है। आप जैसे लोग जब तक रहेंगे ये देश हमेशा ऊंचाइयों को छूता रहेगा, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप यहाँ पर इंडिया में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, हमें जिस तरह से हमने देश के लिए शुरुआत की है हमें उसे कंटिन्यू रखना है। हमें किसी तरह की किसी हेट्रेज के अंदर नहीं पड़ना है, भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है, और हमने कोशिश करना है कि आप सब मिल करके। मैं यूएस में जब गया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को एक भोपाल का बंदा मिल गया या इंडिया का कोई बंदा मिल गया, भोपाल का बंदा मिल गया, वी आर सो हैप्पी टू सी हिम देयर कि आप यू कांट इवन मतलब थिंक ऑफ कि कितना अच्छा लगता है। तो हम लोग अपने मतलब हैं, और वहां जाके देखिए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सब कुछ तो कुछ भी किया जा सकता है, बट अगर इस तरह से हम लोग करते रहे तो हम इस देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और देश सब कुछ है, अगर देश ही नहीं है तो हम लोगों के उसका कोई आइडेंटिटी नहीं। और ये जो एक लाइफ हमें मिली है, जो हमें भगवान ने, गॉड ने, खुदा ने, अल्लाह ने, इन लोगों ने हमें दी है, उसको देखिए वो तो एक दिन खत्म हो जाएगी। और जब आप जा रहे होंगे उस समय अगर आपके ये सब विचार रहते हैं, अगर ये सब कुछ आप कर पाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे हम कुछ ना कुछ करके जा रहे हैं। अगर उन्होंने हमें कुछ दिया है तो उनके सिद्धांतों के ऊपर हमने कुछ ना कुछ किया है, और ये तभी संभव है। मतलब हमें हर एक, हम देखिए बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ आपको, हम डिफरेंट धर्म के हो सकते हैं, जाति के हो सकते हैं, और हमें अपनी धर्म पर, अपनी जाति पर फख्र होना चाहिए, है अच्छी बात है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे धर्म या दूसरे जाति के लिए को उतनी इज्जत ना दे सकें। ये हमारा वो है। ये फौज के अंदर तो मैं आपको बताऊं कि आपको शायद आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ जब हम फौज में होते हैं, हमारा जो अपना धर्म होता है वो हमारे घर पर रहता है। जब हम रेजिमेंट में जाते हैं तो हमारे ट्रुप्स का धर्म जो होता है वो हमारा धर्म होता है। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जो मुस्लिम कंपनीज पे अगर कमांड कर रहा है तो ऑफिसर, सो यू डू ऑल परफॉर्म ऑल दीज थिंग्स। ईद वैसे ही मनेगी, बाकी वैसे ही मनेंगे। सम मुस्लिम ऑफिसर्स कमांडिंग द हिंदू ट्रुप्स और सम अदर ट्रुप्स, they will go to all those puja and everything and they will do it without any this thing, whatever we are doing that is there. दूसरी बात फौज के अंदर होती है कि हमारे यहाँ कोई मतलब जनरली मंदिर मस्जिद ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे धर्म स्थल होते हैं। और जो बड़ी फॉर्मेशंस होती हैं उनके जो धर्म स्थल होते हैं वो पास पास एक मंदिर, एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा, एक चर्च, ये चारों के चारों साथ में रहेंगे। तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारे लोग हमें सिखाते हैं। और हमें इसमें कोई, आप सोचिए अगर हम इस तरह से चलें तो हमारा मन कितना शांत रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, और कितनी अच्छी तरह से हम ये सारे काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग जो है वो आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और इसके लिए भी मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सब लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर सकूं। और मेरे लिए अगर कोई भी काम होता है जो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मुझे करने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। मतलब मैं मुंह से क्या कहूँ, मतलब मैं आपसे सुनते जाएं हम लोग, और मतलब जितनी हम लोग सीख लें वो कम है सर। अभी बस ये तो शुरुआत है। मतलब वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, जो भी हम लोग छोटा मोटा काम करते रहते हैं। आपने जो
बताया 2 NGO के बारे में, उससे भी हम लोग फिर डिटेल्स में पता करके एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दिस आल्सो. And I really want to get associated. All of us are here and we really are very proud movement for us. मेरे ख्याल में one of the best Republic Day आज हम लोग बना रहे हैं आपके साथ. इतनी दूर, अपने देश से दूर रह के बहुत याद आती है, अपने मुल्क की बहुत याद आती है, और आप लोगों ने फिर उस चीज को ताजा कर दिया, याद को ताजा कर दिया. और मैं मेरे ख्याल में तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अपना वक्त निकालने के लिए. अब मैं चाहूंगा कि सिराज साहब से कि सिराज साहब प्लीज ओपन द क्वेश्चन आंसर सेशन इफ यू कैन. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Good evening to all. Thank you, Major Sahab, for your excellent speech. One second. Listen, there is a lot of difference in ranks in Major and Major General. So it is called General because we are in the army and we just Major you General. may not be knowing. Okay, General. sir. So you can call me General instead of Okay, Major. great, sir. It is a very pleasant and it is an extraordinary speech we have got on the 26th day of today. Thank you very much, sir, for joining with us. Now, I request our members to, if you have any questions, please raise your hand so that I can unmute yourself and you can ask the question. Mr. Sadiq Sahab, please unmute yourself, sir. जी, श्याम श्रीवास्तव साहब, आदाब. आदाब सर, आदाब. जी, आपसे बड़ी अच्छी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा. लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत काम किया है. लेकिन एक वक्त में आपको राडार, ये कहा जाता था कि आप राडार पर रहते हैं, तो राडार पे आपने काफी काम किया है. और दूसरी चीज, आज भी आप एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो इन दोनों, एजुकेशन पे तो आपने भी बताया है, तो राडार पे आप रहते हैं, वो क्या था? देखिए, रडार क्या होता है, जैसे आपका रडार के अंदर, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, पहले मैंने रडार में स्पेशलाइजेशन किया था और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन नॉन कम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में किया था. रडार क्या होता है कि जब भी कभी कोई एयरक्राफ्ट आपके पास से गुजरता है, जी सॉरी, वो तो मालूम है, राडार तो मालूम है, लेकिन जो राडार के लिए आपका नाम हुआ है वो क्यों हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा था. इंडिया में क्या हुआ था कि मैं जो था वो अपना यहाँ यूएस में कोर्स करने के बाद में आई वाज विद द मिलिट्री इंटेलिजेंस, और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहने के बाद में हम जिस चीज पे काम करते थे, रडार तो जो है वो एयरक्राफ्ट के बारे में पता करता है, हम रडार्स के बारे में पता करते थे कि रडार्स कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, कौन सा है, किस तरह का है, क्या चीजें की जा सकती हैं. तो उसके ऊपर हम लोगों ने काफी काम किया था, तो इसलिए जो है वो वी गॉट एसोसिएटेड विद रडार. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Anybody else? Because it is a very, very rare opportunity we can have a discussion with our Major Sahab. Mukhtar Sahab, हमारा Vice President. Sir, good evening, sir. Sir, I had been in Indian Air Force and served for 20 years and took the voluntary retirement, Indian Air Force. Okay, oh, excellent, wonderful. I had been there for 20 years. Which area? What was your trade? I was working as an aircraft technician, rather you can say maintenance engineer, and worked for 20 years. I had been many places. Great. Okay. In Kanpur, Agra, Chandigarh, and Assam, in Jorhat. I had been in Jorhat. We used to operate from Jorhat. So Guwahati, we used to take the army people. By train you used to go to Guwahati. Especially in Arunachal, when we used to go for them, Tooting, Machuka. These are the places where our army used to be deployed there. So we used to supply them the ration and other things, and weekly we used to go there. So I had been in the Assam area. So I had enough experience between the army and Air Force and Navy when this all together took part in our exercises and other places. Really, I had been. So now it's my really good luck that I'm looking at you being as a Major General, because these ranks are not distinguished by our civil staff people. They do not know the rank wise. That's what I was going to say, my Mr. Siraj Sahab. Major and Sirf you say the Major or Major General, there's a lot of difference between this. Yes, sir. Major is the lower rank and Major General is the higher rank than the Major. Yes. Anyhow, about the ranks we know and we understand. That's good opportunity to have actually with you this meeting. And moreover, this is the first our core committee has a meeting, such a really great personality
for which we cannot forgive and we cannot forget in our future even, because the first and last we used to remember. So mainly I don't have the question, but only the things, since you are connected with the Congress, so we were very much interested to have something, some point about the Congress. How can we benefited from staying away from our country? How can we benefit? How can we make the benefit to our Congress in our states, in our country? Okay. You see, when I was in college, yeah, okay. Firstly, so really, I'm very happy to know that you served in the Air Force, and anyone who has served into these armed forces, really, I have a respect and I have a salute to them, because it is a very, very difficult job when you have been serving. You even don't know what you're doing, and because you have been trained like that, so you don't realize. But anyone else, if he goes there and he wants to do such type of duty, it is if it is not impossible, it is very, very difficult, because of your training, your understanding, your mental training, and other these things, you don't feel anything. And serving to these things and all, and we can understand, away from cities, away from these things, always looking after those people who are really serving is a great thing. And you in Air Force, and when you have been doing all these things and supplying ration and other things, it is really great, because sometimes it is very difficult for them to reach the ration, and they are doing everything for you. So really great, and I'm very happy, number one. Number two, when I was in college, I was in politics, and that time Congress used to be the only thing, and I was there. And then after I came back there, Mr. Digvijay Singh is one of the personality. He was fighting election, and the moment he came to know, he called me. And you see, Congress is this is not a party. This is something which got everything whatever is required to take the country up. Because when you wanted to take the country up, you have to take everyone together. You can't distinguish, you can't do any other these things and all. And today, you see, it is all vote politics. You have to take the vote and you have to do this thing. And people, once reaches there, they try all type of things. We are not like US and all, where the fair election or other things can happen. So what happens that Congress can really do a great thing. But what is happening that what I feel, that those principles on the basis of which we could get the freedom, number one, and number two, at long time, those principles are very, very important. You see, once you go to the politics, the corruption, the other things, they get involved with any party and every party. But we'll have to away from those things, and then with our principle, if we follow our principle, and anyone who is joining Congress, if he can given the exposure to those principles, and he has been asked to continue only if you follow those principles, we can do a lot as well as this country is concerned. Because still a lot of things has to be done. We have to see our new generation. They are doing extremely well, but it's a part of that who is doing extremely well. There is many of them who were not able to get those things which is their right, like education, like other these things and all. So someone has to do those things. Someone has to come up and without any this thing. And we people who are retired and who are doing this thing and all can contribute a lot. So Congress is one party who can really do a lot as well as the country is concerned. And one more thing is there, that we have to be little selfless. Because once coming into the politics and everyone wanted to become something and all, will become little difficult. Sometimes we'll have to see that whoever can do better, me, you, he, and everyone, we find a good man who can do, we make him go forward and support him. And when you get your chance, you also get the things and all. So little bit more education, more cohesiveness, more understanding. And but this party, its principles, its many people earlier, whether those who are now going away, has to be done. And they will have to understand that whatever is going into the environment, how good it is for the country. And if it is not good for the country, we will have to think about the country first. And if we can do like that, it will definitely happen. Thank you, Major General Saheb. Thank you very much for your answer. Now I request our Kamar Sada. Very good evening, Major Saheb. It's very, very honored to be with you. हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आपके सामने हैं. हम सब ने आपको सुना, काफी इंफॉर्मेशन मिली, आपकी प्रोफाइल को देखा, आपकी कई चीजों को हमने जाना और समझा. करंटली जो इंडिया का सिचुएशन है, जिन हालात से देश गुजर रहा है, जिन प्रॉब्लम से देश गुजर रहा है,
चूंकि आप मिलिट्री से हैं, आप देश की रक्षा करते हुए मतलब आपने बहुत अहम साल आपकी जिंदगी के बिताए हैं। मेरा ये सवाल है कि आजकल का जो करंट सिचुएशन है, जो देश पर आजकल हम सुन रहे हैं कि मतलब हमारी सीमाओं पर जो है वो कब्जा किया जा रहा है, आप इसके बारे में हमें क्या रोशनी दिला सकते हैं? मतलब इससे पहले तो जो है इतनी जो पहले सरकारें आई 70 साल, जिन्होंने जो है देश की रक्षा की, जिन्होंने जमकर जो है दुश्मनों के छक्के उड़ा दिए, लेकिन आज जो हमें बेशर्मी मतलब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कि हम सुन रहे हैं कि चाइना आकर जो फलां कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसके बारे में हम आपसे जो है ना कुछ रोशनी चाहते हैं सर। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स में किसी की भी सरकार रहे या कोई कहीं भी रहे, फौज वैसी की वैसी है। जो फौज पहले थी वो फौज आज भी है। फौज के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। Certain things are very facts are there. If we have to fight a war with Pakistan, but there is no match. If we have to fight a war with the China, there are reasons. They are good in many things and all. And सिर्फ सारे की सारी लड़ाइयाँ सिर्फ फौज ही नहीं लड़ सकती। लड़ाई लड़ने के लिए आपको जो है वो पॉलिटिकल लेवल पर, स्ट्रेटेजिकल लेवल पर, उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे काम करना पड़ते हैं। यहाँ पर यह है कि कोई अगर आप ये सोचे कि कोई सरकार के आ जाने से चीफ जो है वो लोगों को ये कहे कि आप पीछे हट जाइए, या लोगों के अंदर ये मुद्दा ना रहे कि वो लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सर्कमस्टांसेस की बातें होती हैं। यस, मतलब इफ दे आर ट्राइंग टू, होता क्या है वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्या होता है, एक कल हमने एक बहुत बड़ा लड़ाई लड़ी थी 1971 के अंदर, अगर आपको याद हो तो। मतलब इससे बड़ी लड़ाई शायद वर्ल्ड के अंदर बहुत कम होंगी, जिसके अंदर 95,000 एनिमीज प्रिजनर ऑफ वार बनाए गए, और हमने 13 दिन के अंदर वो लड़ाई खत्म कर दी थी। तब भी चाइना जो था वो हमसे बहुत स्ट्रांग था, और उसके अंदर जो है वो अगर वो भी हमारे पास दूसरे फ्रंट से आ जाता तो शायद हमें लड़ाई लड़ना मुश्किल होता। बट हमने स्ट्रेटेजी करी, हमने उस समय के ऊपर चुना जिस समय के ऊपर चाइना की बॉर्डर सारी कुछ भी नहीं कर सकती है। दूसरा, हमने जो है वो वर्ल्ड प्रेशर बनाया, हमने सारे वर्ल्ड को, अब मतलब अमेरिका का 7th फ्लाइट हैज ऑलरेडी रीच देयर, और वो अगर अपना वो करती उस समय दे वर वेरी एडवांस, इट कुड हैव बीन डैमेज ऑल आवर प्लान्स एंड ऑल, बट देन रशिया सपोर्टेड अस, then other people have supported us, then whole world was with us. So you see, लड़ाई जो फौज है उसमें कभी कोई कमी नहीं है। They are very well trained people, and आज भी Indian armed forces may be one of the best armed forces in the world. US की armed forces के पास में सारे इक्विपमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो लड़ने का मुद्दा या लड़ने की जो जरूरत इंडियन आर्मी के पास में शायद किसी और के पास में ना हो। लेकिन क्या है कि हमें दूसरी चीजों को भी देखना चाहिए। चाइना की हिम्मत ही नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह हमारी तरफ देखे, और अगर वो इस तरह का कुछ करता है तो पूरा वर्ल्ड जो है वो सामने आ जाना चाहिए। ये हमारी मतलब वो होना चाहिए वर्ल्ड के अंदर अंडरस्टैंडिंग। जलवान के अंदर भी वो बहुत दिनों से चला आ रहा है जो चीज हो रही है, और हमने उनको अलाउ नहीं किया, क्योंकि सबको मालूम है, चाइना को भी मालूम है कि अगर वो ऐसा कोई वो कुछ करता है तो उसको परेशानी होगी। लेकिन ये है कि वो दिखाने के लिए, और उसमें भी कोई ऐसी बहुत वैसी बात नहीं है कि ये मतलब उन्होंने जो है अभी कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कि हम लोग अपना वो कर रहे हैं। हमने अभी दूसरी बात ये है कि यहाँ से हो जाने के बाद में now we are मतलब it is not from 2-4 साल से, last about 10-15 years now we are doing our everything to the Chinese border, our Chinese navy, मतलब the naval this thing and all। अब इससे पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी दूसरी चीजें उतनी अच्छी नहीं थी। अभी पिछले 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर हमने काफी कुछ ठीक किया है, और चाइना से 1-to-1 होगा तो हमें मतलब काफी वो करना पड़ेगा, और उसके लिए तैयारी करना पड़ेगी एज एन टुडे अगर होता है तो। और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि अगर वो करने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी वर्ल्ड पावर जो है वो उस तरह आ जाती है उसके अंदर। तो ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। ये थोड़ी बहुत चीजें हमें लगती हैं, लेकिन हैव फेथ इन द आर्म फोर्सेस। चाहे कोई भी गवर्नमेंट्स आती रहे, थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है गवर्नमेंट्स के आने से या कुछ करने से, बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर, मैं इस कमर सादा साहब के क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि बीइंग एन एयरफोर्स पर्सनल, I would like to just really, I would like to know the real picture of it, because we were just supporting the army, our army people, but you were the first man who had been at the ground level, so you know better than us. मेरा सवाल आपसे ये है, जो अभी हमारे पीएम साहब ने साल भर या 8 महीने पहले कहा था कि चाइना का न कोई घुसा है, न कोई अंदर आया है, न कोई कुछ हुआ है, और हम तमाम वीडियो और तमाम बातें सुन रहे हैं कि वहाँ कई गांव बस गए हैं जहाँ का आपने नाम में भी लिया है, और उस पर एक लफ्ज हमारी गवर्नमेंट नहीं बोल रही है। क्या कहीं ऐसा नहीं सर हमारी जमीन को, उस जगह को उन्होंने बेच दिया हो और इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं? क्या आर्मी के हमारे जो चीफ हैं,
क्या उन पर इन्फ्लुएंस नहीं होता, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता? वेल सेड। देखिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जरूर होता है जब भी कभी कुछ कार्यक्रम। देखिए पीएम साहब क्या बोल रहे हैं, या पीएम साहब इज ए पीएम ऑफ दिस कंट्री ऑफ कोर्स, बट अदर देन बीइंग पीएम ही आल्सो इज रिप्रेजेंटिंग वन पर्टिकुलर पार्टी, एंड उस हिसाब से इनके जो भी मतलब डिसीजंस होते हैं, कितने सच होते हैं, कितने झूठ होते हैं, कितने पॉलिटिकल होते हैं, मतलब ये तो उस लेवल के ऊपर ही बताया जा सकता है जो वहां पर लोग बनते हैं। लेकिन ये है कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जहां तक उस जगह का सवाल है, मतलब यस चाइना इज वेरी एग्रेसिव, चाइना जो है वो दूसरी कई जगहों के ऊपर, मतलब अभी क्या डिमार्केशन भी पूरी अच्छी तरह से नहीं हुआ है, मतलब जहां पर भी पहले से भी चाइना के अंदर था, और कुछ उन्होंने कई चीजें कर ली हैं, हमें बताना चाहिए था, कुछ वो करके मतलब वी शुड हैव टेकन सम डिसीजंस, हैव टोल्ड समथिंग, या जो भी उन्होंने डिसीजन लिया हो। बट हाँ, ये कहना कि ऐसा नहीं हुआ है या मतलब होता है, इसके लिए अभी मुझे कुछ नहीं कहना ही ज्यादा ठीक है। क्या सर हमें अभी भी उसी तरीके का जवाब देना है जैसे लोग दिया करते हैं? क्या ये बिल्कुल सच और सही बात को साबित करता है? जैसे मैं बताऊं सर, अब हकीकतन जो चीजें हुई हैं, जो हो रही हैं, जब ये सीएम थे तो कुछ बोलते थे, जब पीएम आए तो खामोश हो गए। और अभी क्या क्या नहीं हुआ है, बॉर्डर पर क्या क्या नहीं हो रहा है, चाहे हमारे 44 जवान मारे गए हों, उनका कुछ नहीं, और जगहों पर मारे गए उनका कोई नहीं, कोई जांच कोई पड़ताल नहीं। तो क्या रियली हमारे जो चीफ हैं, मैं मेजर जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेफ्टिनेंट जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल की बात कर रहा हूँ, जो उस ग्राउंड पे हैं, क्या उन्हें गवर्नर दिखता है, गवर्नरशिप दिखती है, या पार्लियामेंट के राज्यसभा का मेंबरशिप दिखता है सर, जो वो अपने चहलकदमी या अपने दिमाग से कोई उस काम को नहीं कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस के तहत कर रहे हैं, चाहे वो देश में उसका गलत मैसेज जा रहा हो, या हमारा देश एक तरीके से बिक रहा हो, या बिकता चला जा रहा हो? क्या ऐसा वाकई है? देखिए एक बॉर्डर के ऊपर क्या होता है, मतलब ये तो डिफरेंट है, बट एक बात मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि जो भी चीफ होता है ना, वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के बाद से चीफ जा करके बनता है, और वो कभी भी अपने साथियों के लिए, दूसरों के लिए, आर्मी के लिए, कंट्री के लिए, उसके ऊपर तो हम इतना विश्वास कर सकते हैं कि वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन देना है, जो बताना है, उसके अंदर चीफ की भी अपनी एक लिमिट होती है। चीफ जो है वो उससे ज्यादा नहीं बोल सकते कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है, ये मतलब पीएमओ का काम है कि क्या इंफॉर्मेशन देना है, क्या बताना है। लेकिन जहां तक लड़ाई करने का सवाल है, जहां तक अपनी जमीन की हिफाजत करने का सवाल है, आई कैन एश्योर यू नो वन हु हैज पुट ऑन द यूनिफॉर्म विल कंप्रोमाइज। अभी जो कर्नाटक में दूसरी अलग हादसा, चीज है, वो एक अलग चीज है। जब आप मिनिस्ट्री की बात करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं, पीएमओ की बात करते हैं, वो क्यों और कौन सा स्टेटमेंट देते हैं और उसका क्या मतलब है, ये वो लोग जानते हैं। लेकिन जहां तक यूनिफॉर्म वालों का सवाल है, आई कैन एश्योर यू दैट नो वन विल कंप्रोमाइज। जो वेलिंगटन में जा रहा था अपना, जी सर, मैं तो इसलिए जेन्युइन बात कर रहा हूँ सर। टुडे वी आर फ्री एंड फेयर टॉकिंग हियर, डेफिनेटली फॉर आवर पीपल, we know the politics, they are playing the politics, and according to the politics we वो are बिल्कुल ठीक है। understanding, लेकिन ये बात भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आई बीन एसोसिएटेड विद सो मेनी पीपल एंड ऑल, नो वन विल डू दैट। कोई भी मतलब अगर होगा तो मतलब वन कैन लीव दिस थिंग, बट इन सब चीजों के लिए नहीं करें। Since you had been in electronic war system, so I am really electronic and telecommunication engineer in my Air Force, and I was working on aircraft. I have worked on many different installations like GCA and the instrument landing systems and other things. I have worked in a lot of the places for the secret things, for the confidential things, in base operational units also. So I know this very exactly. But today I am asking only the things, the one I had a doubt, because I won't be in the ground, so I don't know. Even one meeting in Coimbatore, I had been in one CNC's meetings in Coimbatore. एक हमारे जो AOCNC हैं, जो एयर मार्शल हैं और AOCNC साउथ हैं, सदर्न एयर कमांड के, वो पूछते हैं डिनर पार्टी में हम लोगों से, कहते क्या चाहिए बताइए। उस समय मुशर्रफ साहब थे जनरल वहां के पाकिस्तान के, कहीं क्या अच्छा मुशर्रफ साहब अटैक करेंगे क्या इंडिया पे? तो मैं मुझसे नहीं रह गया सर, मैं आस्क्ड हिम सर, मैं कहा यू यूज्ड टू गो इन कमांडर कॉन्फ्रेंस मीटिंग सर, व्हाट वी नो, whatever the messages you are delivering us, that only we know, otherwise whatever the things comes in the news, but real picture you know better than what you expect from us. ये चीजें सर CNC इस तरीके से बोल, माजरत चाहूंगा हमने टाइम लिया आपका, और ये बस जानकारी के लिए सर, और बस लोगों को इस चीज से अवगत कराने के लिए। Thank you, Major General Saheb. Then another question from Mr. Manjur Abbas.
I see there are 4 people who have raised their hands. Yeah. If anyone wants to ask Major General Saab, please let us know, because he has his own time actually, because it's Mr. getting late for him Iqbal also. Kaur sahab, Mr. Iqbal Kaur. And please keep it short, please, Yeah. for him. मेजर जनरल साहब, आप सबको हमारा जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का, सऊदी अरेबिया का, सब लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं आज बहुत खुश हुआ कि हमारा बीच में जो मेजर साहब आज जो बांटा हुआ जो हिस्सा है उनका, जो पिछले जो उनका जिंदगी में जो हुआ था उसको हम लोगों का साथ शेयर किया हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ आज भी ऐसा सेक्युलर एक मेजर साहब हमारा बीच में है। इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आज का जो युग है, चाहे मीडिया हो, चाहे हम लोग देख रहे हैं अभी जो राजनीति हो रहा है, जो ये मिलिट्री का नाम पे जो भी राजनीति हो रहा है, उसका बारे में हम लोग को देख के, मतलब हम लोग बहुत दूर है, देख के बहुत दुखित है हम, जो इंडिया में अभी जो जुल्म हो रहा है उसका बारे में सुन के और सोच के भी हम लोग को बहुत है। मगर आज बहुत खुश हुआ कि हमारा साथ में ऐसा एक मतलब जो फोर्स में एयर फोर्स हो, क्या आप जो काम किया था उसके बारे में हम लोग को बीच में आपने दिया हुआ है, उसके लिए हम आभारी है। और आज हम लोग को एक मिसाल बन गया आपका जो बात, बहुत थैंक यू। और मैं कुछ पूछना नहीं चाहता हूँ कि इतने बड़े आदमी से हम लोग बात करना ही बड़ा बात है कि आज आप हमारा बीच में। थैंक यू सर। Thank you very much. Very nice. Thanks. Thank you, Abbas sahab. I think Thank you, most Abbas. of the people have asked the questions. Now we will go to the next item, Arshi sahab. I think if everyone has asked the question, I will ask because it's getting late for sir Yeah. also. Yeah. So we will ask for a thank you note from Mukhtar Saab, and then we'll go for Janganman and we'll stop it here. Then. Okay. All right. Okay. Thank you. Yes. Vote of thanks. Good evening, everyone, to the one and all present here, Honorable Chief Guest Major General Shyam Shrivastava ji, and all the participants. It is such an honor for me to get an opportunity to thank you all dignitaries. On behalf of the Indian Overseas Congress, IOC Saudi Arabia, I, Vice President Professor Mukhtar Khan, extends a warm welcome to the IOC leaders and volunteers in the gathering. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the Zoom meeting for their presence and contributions to make this Zoom video meeting a great success. I extend my gratitude to our Honorable Chief Guest, Major General Shyam Shrivastava, Indian Army, to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you for inspiring and encouraging us with your beautiful words on this Republic Day. A special thanks to Dr. Arshi Malik, President IOC KSA, for providing immense support to make the meeting successful. I extend my gratitude to all leaders of Core Committee IOC KSA to organize and hosting this meeting to make massive success. I must thank the organizing team leaders for working hard in short notice to make this meeting successful. I congratulate all the leaders as well as the participants for their active participation. Thank you everyone once again for making it a great success. Thank you. Thank you, Mukhtar sahab. Thank you very much. Thank you for your sweet thanks note. Anything, sir, you want to say before we go for Janganman, sir? Thank you very much for inviting me. I really enjoyed interacting with you. सर, ये हमारा पूरा प्लेजर रहा है, और आपसे एक और बात इतनी कहेंगे कि आपको फिर से कभी अगर जरूरत हो तो आप जरूर You are इस मंच most पे welcome. Most welcome. Anytime I am available. And आप लोगों से सुन करके बहुत अच्छा लगा. It was really very nice to interact with you people. हम Thank you, सबको sir. बेहद खुशी हुई सर, हम सबको बेहद खुशी हुई, क्योंकि लोग जो है सवाल बहुत लोग पूछना चाहते हैं, क्योंकि एक बार ऐसे किसी को मेरे ख्याल में चांस नहीं मिलता है कि मेजर जनरल साहब से कोई डायरेक्टली ऐसे बैठ के बात कर रहा है। हम लोग के लिए भी एक तरह से ड्रीम है ये कि हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि हमने तो मुख्तार साहब तो शायद मेरे ख्याल में रह चुके हैं उसमें, लेकिन हम जैसे लोग जो सिविलियन है उनके लिए तो मतलब एक तरीके से
पहले तो समझ में नहीं आता बोले क्या, कैसे बात करें, नहीं। उसकी क्या क्या तरीका है बात करने का, तो उस चीज में जब वो बोलना सब- शुरू करते हैं तो सवाल बहुत तो सारे वो लोग के सब खत्म निकलते हो हैं गया। कि आज आई क्या एम बात करें आपसे। आल्सो अवेलेबल एंड बिल्कुल हम और सब लोग मतलब सेम कंट्री मैन है, सेम सब कुछ है। जी जी अगर हम जी लोग भी एक दूसरे के साथ में अपनी आप बातें शेयर नहीं कर सकते तो किसके साथ करेंगे। जी, जी। मुझे आपकी बहुत अच्छा कहानियां लगा जो है, तुम्हारे सुन के। आपकी कहानियां थोड़ी सी मुख्तसर सी रह गई, छोटी रह गई, और चाह रहे थे कि और कहानियां सुनेंगे आपसे, क्योंकि आपके पास बिल्कुल जितने किस्से बिल्कुल। होंगे मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं होंगे जितने आपके पास है। हाँ तो मतलब है ऐसी 5। चीजें छोटी छोटी, जी क्योंकि वो जी जो हमारी वो चीजें है ना वो बहुत सारी बाहर आती नहीं है, तो जनरली लोगों को पता भी नहीं चलती, जी, तो जी, इसलिए अलग लगती है। उससे इतना एनकरेजमेंट मिलेगा हम जैसे सिविलियंस को कि बता नहीं सकते, क्योंकि आपने जो फेस किया मेरे ख्याल में हम लोग नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते इस चीज जी के बारे में। जी। जी सर, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, और Thank वी आर नाउ गोइंग फॉर जनगणमन एंड वी विल आस्क, आई विल आस्क एवरीवन टू प्लीज स्टैंड अप प्लीज। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू शिवरात्रि, गुड नाइट। Good night. गुड नाइट Good सर, night, अपने Good night, sir. बहुमूल्य वक्त को आपने दिया सर, हमारा ये नो सौभाग्य है, सर, यकीन इसलिए करें, बहुत अच्छा लगा बेहद आप खुश लोगों हैं। से डिस्कशन करके, एंड आई एम अवेलेबल एनी टाइम। And before I finish this meeting, I would like to thank my very dear friend Rohan, who has really behind the scene has done everything. Actually, he wasn't there, but it was Rohan who organized everything. So I want everyone to know he is the guy behind Major General Saheb who did everything, and I'm really thankful to him. Thank you for Thankful to Rohan Saxena ji, Rohan Saxena ji, right? जी Rohan Saxena ji. बहुत खूब, बहुत Thank you. खूब। Thank you, sir. so much. Thanks a lot, sir. Thank We you are very much. thankful to you. We are thankful to you, my dear brother. Anytime, sir. Anytime. We will see you Anytime, sir. again. We will see you Okay. again We soon. will see you inshallah. again, Sure. sir. For sure, sir. Okay. Okay. Bye-bye. ओके सर, गुड नाइट, Good थैंक यू। night. Good On a night. bigger Thank platform, you sir. so much, Thank sir. you. Thank Thank you you so very much, much. sir. Thank you so much, sir. Good night. Take Good care, night, sir. sir. Good night. Have Good night, sir. गुड नाइट सर।